Hi guys, welcome to the Pandu English Academy. Today we learn the lesson of class 8, the book Honeydew, the Christmas present, the best Christmas present in the world. इस लेसन के बारे में आप स्टडी करेंगे। क्लास 8 की हनीड्यू की एनसीईआरटी की बुक का फर्स्ट लेसन है। दैट इज बोथ फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम फॉर आरबीएसई एंड सीबीएसई बोथ. In these lessons, there is a story about a Christmas festival that was celebrated in two British army, two army of the world. That one army was the British army, whose its captain was Jim McPherson. In the opposite army that was on the boundary was the German army, that is known also as the Frenzy. The captain of that army was the Hans Wolf. For these lessons, one day author went to the market. Author market जाता है and he saw something in a shop. He found two things there. One is a roll top desk and another is an oak. The author could not purchase both because both were very expensive. But anyhow, the author was able to purchase one, the table, that is roll top table, and brought it to his home. That was very clumsy, very weak, and very dirty, that has been jammed due to the water and fire. But anyhow, author thought I must take it to my home and repair it. I can use it anyhow. In this way, the author brought this decision home. Then, after purchasing it, and when we read this lesson, we should know, हमें जानना है, what is the importance of this table and why this was very important. ये हमें जानना है. तो इस लेसन के अंदर जब वो राइटर इस टेबल को अपने घर पे लेके आता है, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, तो दैट वाज वेरी डस्टी. ही क्लीन देम, उसको क्लीन करता है एंड ओपन द ड्रोवर्स विद हिज स्ट्रॉन्ग पावर, विद स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ फिस्ट. इट हैज बीन जैम हो चुकी थी ड्यू टू डस्ट एंड फायर, बट एनी हाउ ऑथर able to open it. And when he opened it, he found something very interesting. There was a tin box in which there is a letter written by a captain of English army on the Christmas day. इस स्टोरी, इस लेटर के अंदर जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन का है. उसमें ये बताया गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड के ड्यूरेशन में ऑन 25 दिसंबर 1914 को, जब क्रिसमस, जिस दिन क्रिसमस था उस दिन ब्रिटेन, इंग्लैंड एंड जर्मनी की आर्मी जो है आमने सामने युद्ध के मैदान में मुकाबला कर रही थी. बट ऑन दिस डे जर्मन आर्मी, जिसे यहाँ फिर से कहा गया है कि कुछ सैनिक अपने हाथ में व्हाइट फ्लैग लेते हुए इंग्लिश आर्मी की तरफ बढ़ते हैं. व्हाइट फ्लैग इज द सिंबल ऑफ पीस, शांति का प्रतीक है. वहां आते हैं और उनको देख करके ब्रिटिश सैनिक भी सरप्राइज हो जाते हैं. but they try to know what is the matter, because when any army had a white flag, opposite army could not fire on them, because that was the symbol of the peace or surrender. Now it was not actual surrender, but on the auspicious day of the Christmas, they want to celebrate without knowing that they were the enemy. So they came, they asked the British army soldiers to come on the boundary line and share the sweets and other things, and be friendly. Try to stop this quarreling and dispute and warring and battling in the world. And for a one day,
we should forget it and celebrate the Christmas, because Christmas festival was the same for everyone. Is the same for the everyone. That's why they come there. तो बाकी की स्टोरी हम इसके अंदर लेसन में आगे पढ़ेंगे, जैसा कि लेसन नेक्स्ट द क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। लेसन का नाम है द क्रिसमस प्रेजेंट्स। हियर प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट। क्या मतलब होगा यहाँ पे इसका? गिफ्ट। क्रिसमस का सबसे अच्छा गिफ्ट क्या है? गिफ्ट क्या है? नाउ लेसन शुरू होता है। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक सोप इन ब्रीड पोट। स्पॉटेड मीन्स लुक्ड। ऑथर बोलता है कि मैंने स्पॉट किया मीन्स आई लुक्ड ए something in a soap that was in breed pot. The thing he looked in the soap was a roll top desk means एक टेबल उसको दिखाई देती है उस सोप के अंदर। The man said it was early 19th century. The shopkeeper said that this table was early 19th centuries. Early 19th centuries. Okay, almost 100 year ago, because the first world war was in early 20th century and this table was belonged to early 19th century. And one thing more, the author looked in the shop that was the oak. Both were very expensive. He then I had wanted one. Author कहता है कि मुझे एक को लेना था, but they were far too expensive. लेकिन वो बहुत ही महंगी थी। This one was in bad condition. This one means the table that the author bought. जिस टेबल को वो author ने खरीदा, that was in bad condition. बुरी कंडीशन में थी। The roll top in several pieces. One leg clumsily mended. Clumsily mended का मतलब है awkwardly repaired. उसकी एक लेग जो टूटी हुई थी वो properly mended, repaired नहीं की हुई थी, यूं ही टेम्परेली उसको मेंड और रिपेयर किया हुआ था। It was not properly fit. And there were many things on the table that are the Scots marks all down one side. और इसके एक साइड में काफी स्क्रोच के मार्क्स थे, स्क्रेचेज के मार्क्स थे, धुरियां लगी हुई थी। मीन्स द टेबल्स कंडीशन वाज वेरी बैड। इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी और इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। सो ये बहुत ही सस्ते दाम में उतर को मिल रही थी तो उतर ने इसको परचेज कर लिया। आई थॉट उतर कहता है आई थॉट कि मैंने सोचा आई कुड रिस्टोर इट कि मैं इसे रिस्टोर कर लूंगा, कर सकूंगा। इट वुड बी ए रिस्की एंड ए चैलेंज और टू रिस्टोर इट it seems very risky to the author, it will be very challenge to him, but anyhow he purchased it. But I had a but I had to give I had to have it I had to have ऑथर कहता है बट आई हैड टू हैव इट। ऑथर कहता है कि मुझे इसे रखना पड़ा था। हैड टू का स्पेशल मीनिंग है, ध्यान दे। हैड टू व्हेन वी यूज टू आफ्टर हैड इट्स सो कंपल्सरी इन द पास्ट। इसका मतलब होता है कि कोई भी कार्य जो हमें पास्ट में मजबूरीवंश कंपल्सरी करना पड़ा, हमारी इच्छा करने की नहीं होती फिर भी हमें करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना, हैड टू का यूज करना होता है। और प्रेजेंट के लिए अगर हमें कोई बाध्यता को शो करना है तो हैज और हैव टू को यूज करना होता है। फ्यूचर के लिए हमें विल हैव और शैल हैव टू का यूज करना होता है। यहाँ इसका अर्थ होगा जब इसका हम हैड टू हैव टू का यूज करेंगे तो यहाँ होगा आई हैड टू हैव इट, मुझे इसे रखना पड़ा था। इसका मतलब ये होता है, जैसे यहाँ इसका एग्जांपल दिया है आई हैड टू कॉल यू, मुझे आपको कॉल करना पड़ा था। इसी की बात में प्रेजेंट की करूं तो हो जाएगा आई हैव टू कॉल यू, मुझे आपको कॉल करना पड़ता है। सो दिस इज द कंपल्सन। ओके, आई पेड द मैन एंड बोट इट बैक टू माय वर्कशॉप। ऑथर कहता है कि मैंने उस आदमी को उस टेबल के पैसे दे दिए और मैं उसे अपने रूम में ले आया। एट द बैक ऑफ द गैरेज आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव का मतलब ऑन द 24th दिसंबर, क्रिसमस के पहले वाला दिन जो नाइट होती है दैट इज नोन एज ए क्रिसमस ईव। जैसे हम कहते हैं फर्स्ट डे, जैसे हम कहते हैं न्यू ईयर ईव, 31st दिसंबर इज नोन एज न्यू ईयर ईव, जस्ट एज द 24th दिसंबर इज नोन एज क्रिसमस ईव। तो क्रिसमस ईव के दिन मीन्स ऑन 24th दिसंबर ऑथर ने उस पर काम कर।
शुरू किया। देन आई रिमूव, घर पे लाने के बाद में अपने वर्कशॉप को ग्रेज में लाने के बाद में ऑथर ने इस पे काम शुरू किया। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली, ऑथर कहता है कि मैंने इसके रोल टॉप को पूर्ण तक रिमूव कर दिया, हटा दिया। पुल्ड आउट द ड्रॉवर, जो इसकी ड्रॉवर थी उसको मैंने बाहर खींचा। द veneer had lifted almost everywhere. This veneer means a thin layer of plastic or decorative wood on furniture to of cheap wood. veneer का मतलब होता है, तो हम सनमाइका जो लकड़ी के ऊपर लगाते हैं, दैट वो कंप्लीटली लिफ्ट हो चुकी थी। कोई भी लकड़ी की वुडन जो आइटम जो होते हैं वो काफी लंबे समय तक अनयूज्ड पड़े रहते हैं, तो उसकी जो सनमाइका जो होती है वो उखड़ जाती है, जैसे कि इसकी भी हो गई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लग रहा था कि इसकी जो वेनियर थी, जो सनमाइका जो थी, जो थिन लेयर जो इसकी थी, वो पानी की वजह से डैमेज हो गई थी। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। मीन्स पानी और आग ने इस डेस्क को कंप्लीटली डैमेज कर दिया था। द लास्ट डोर वॉज स्टक फास्ट, उसकी लास्ट वाली जो नीचे नीचे वाली जो ड्रोवर थी वो काफी फास्ट स्टक थी, मीन्स इतनी टाइट हो गई थी कि वो खुल भी नहीं पा रही थी। वो तो कहता है आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट विद ईज इट आउट जेंटली। वो तो कहते हैं कि जितना आराम से आसानी से हो सकता है मैंने इसको आराम से खोलने की पूरी कोशिश की। इन द एंड जब ये इजी वे में नहीं खुल पाई, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स मीन्स फोर्सफुली, ब्रूट फोर्स मीन्स द ऑथर पुल दिस ड्रोवर स्ट्रांगली, बहुत ही जोर से इस टेबल को खींचा। जैसे इसने जो खींचा, आई स्टक एट शार्पली विद द साइड ऑफ द माय फिस्ट एंड द ड्रोवर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ। जब इसने इसको फोर्सफुली इसको खींचा तो उत्तर का हाथ एक तरफ ग्राउंड पे टिक गया, क्योंकि उसने पूरा फोर्स लगाया और इतने जोर की वजह से जो टेबल जो की जो ड्रोवर थी वो खुल करके ओपन हो गई। और इस टेबल में शैलो स्पेस अंडरनीथ, जिसमें कुछ खाली जगह थी, वह सेक्रेट ड्रोवर, इसके अंदर एक सेक्रेट ड्रोवर और थी। इस ड्रोवर के अंदर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज द मैटर ऑफ दिस लेसन। देयर वाज समथिंग इन देयर, वहां कुछ चीज थी। आई रीच्ड इट इन, ऑथर कहते हैं कि मैं वहां पहुंच सा, मीन्स मैंने उस वस्तु को उठाया। टुक आउट स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैंने छोटा सा टिन बॉक्स को बाहर निकाला। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट, इसके किनारे पे टॉप पर सेलो टेप लगी हुई थी। इट वाज ए पीस ऑफ लाइन्ड न्यूज़पेपर and written on it in shaky handwriting. Shaky handwriting means while writing the hand was vibrating, ऐसा लगता है लिखते समय जो हाथ कंपते हैं, ऐसा लिखा हुआ लेटर था। जिम्स लेटर, ये जिम्स का लेटर था। जिम वाज द कैप्टन ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, रिसीव्ड ऑन 25th जनवरी 1915। इस लेटर को 25 जनवरी ऑफ 1915 को रिसीव किया गया था, जो जिम के द्वारा लिखा हुआ था। टू बी बरीड विद मी, इसके ऊपर इन्वेलप में लिखा हुआ था, इसके ऊपर लिखा हुआ था व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए, इस पे लिखा हुआ था इस लेटर को जब समय आए तो मेरे साथ में बरी कर देना, बरी कर देना। बरी का मतलब होता है कि डेड बॉडी को जब जैसे दफनाते हैं उसके साथ में इसको भी दफना दिया जाना। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. मैं जानता था कि इस तरह की किसी की प्राइवेट लेटर को खोलना बहुत ही गलत था, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माय स्क्रपल्स। लेकिन काफी उत्सुकता की वजह से, स्क्रपल्स मीन्स ए फीलिंग ऑफ डाउट रिगार्ड ऑफ द मोरलिटी। मोरलिटी तो यहाँ ये है कि उसे इसे नहीं खोलना चाहिए था, क्योंकि दैट वाज द प्राइवेट लेटर, बट काफ़ी प्रोसेस था, काफ़ी ये फीलिंग डाउटफुल भी लग रहा था, तो वो तो अपने आप को रोक नहीं पाया और इसको खोला। इट यूजुअली डज़, जैसा कि हमेशा होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज़ एनवेलप, एक एनवेलप भी था। द एड्रेस रेड, जिस पे एड्रेस लिखा था मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बिचेस ब्रीडपोर्ट डोरसेट। ये इंग्लैंड का एड्रेस है, इस पे लिखा हुआ था। आई टूक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, ऑथर कहता है कि मैंने लेटर को बाहर निकाला, उसको अनफोल्ड किया, मीन्स उसको ओपन किया। इट वाज रिटन इन पेंसिल, डेटेड एट द टॉप, इसके टॉप पर डेट लगी हुई थी
that is a December 26, 1914. 26 December 1940, after one day of the Christmas festival, this letter was written. अब इस लेटर में क्या था हमें ये जानना है। ये लेटर ऑथर ने जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ मिसेस जिम मैकफर्सन को लिखा था, जिसको वो लविंगली कोनी कहा करता था। वो कहता है, डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। ऑथर कहता है कि मैं लेटर बहुत ही खुशी के साथ लिख रहा हूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी इन द टुडे, आई हैव सीन सच ए सीन और सच ए बिहेवियर ऑफ ह्यूमन काइंड दैट make me very happy because something wonderful has just happened। तो बहुत ही एक अच्छी घटना घटित हुई है जिसकी वजह से मैं खुश हूँ। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। और मुझे लगता है कि मुझे आप इस घटना को अभी हाथों हाथ ही तुरंत, एट वंस मीन्स तुरंत, आपको बता देना चाहिए। क्योंकि 25 को तो घटना हुई और 26 को लेटर लिख दिया, तो जल्दी से जल्दी इस तरह की घटना को अपनी वाइफ के साथ में शेयर करना चाह रहा था। We were all standing to we were all standing to in our trenches yesterday morning। और यहाँ से उस घटना का वर्णन करना, डिस्क्रिप्शन करना शुरू करता है। और कहता है कि we were all standing to का मतलब होता है कोई आदमी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहना। जैसे कि पोजीशन इन है एरिया ऑफ एक्टिविटी, जो भी जैसे कि आर्मी ये आर्मी में कैप्टन था, इसके साथ सोल्जर थे, तो सोल्जर अपनी ड्यूटी पे हमेशा तैनात रहते हैं। उधर कहता है कि क्रिसमस के दिन हम अपनी ड्यूटी पर, हम हमारे ट्रेंचेस, ट्रेंचेस का मतलब खाइयां, क्योंकि आर्मी ने अपने बैरिकेड्स बना रखे थे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, उनके अंदर वो छुपे हुए थे, वहां पर वो काफी मजबूती से तैनात थे। क्रिसमस मॉर्निंग, वो क्रिसमस की मॉर्निंग के दिन, इट वॉज एंड क्वाइट ऑल अबाउट, बिल्कुल चारों तरफ शांति और कूलनेस थी, फ्रेश था, बिल्कुल शांति थी, कोई सी भी तरह की कोई घटना नहीं थी। ऐसा लग भी नहीं रहा था कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटित होने वाली है। एज ब्यूटीफुल मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, जैसा ऐसी ब्यूटीफुल मॉर्निंग कभी मैंने देखी ही नहीं। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और वो मॉर्निंग 25 दिसंबर की मॉर्निंग काफी ठंडी और फ्रोस्टी थी, कई फोग धुंध थी, जैसा कि क्रिसमस में होता है। और काफी अच्छा मनमोहक दृश्य था वहां का। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, कि उस दिन हमने शुरू किया। बट द ट्रूथ, वी का मतलब है कि ब्रिटिश आर्मी, कैप्टन ऑफ द ब्रिटिश आर्मी एंड द सोल्जर्स। बट द ट्रूथ, लेकिन ऑथर कहता है कि हमने शुरू किया, लेकिन ऑथर कहता है कि सत्यता ये है, आई एम असेम्ब्ड टू से, मुझे कहते हुए शर्म आती है, इज दैट फ्रिज बिगेन इट। ऑथर पहले कहते हैं कि हमने शुरू किया, लेकिन ऑथर कहता है कि नहीं, हमने नहीं किया, वो हमारी अपोजिट जो आर्मी थी उन्होंने शुरू किया। यहाँ फ्रीज का मतलब है, कॉमन वर्ड होता है, कॉमन नेम यूज फॉर जर्मन, जर्मन के लिए कॉमनली जो वर्ड यूज की जरूरत होता है फ्रीज। ये हमने नहीं शुरू नहीं किया, मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि मैंने शुरू किया, जबकि हमने नहीं शुरू करके हमारे अपोजिट आर्मी के सोल्जर्स ने शुरू किया, जिनको यहाँ फ्रीज कहा गया है। First, someone saw the white flag waving from the trenches opposite। और ये घटना शुरू होने से सबसे पहले हमारे अपोजिट आर्मी के सोल्जर्स ने व्हाइट फ्लैग्स को एयर में वेव किया, हिलाया। Then they were calling out us from across no man's land। No man's land means the area between two country or two boundary that was a matter of dispute। No means लैंड वो होती है जो झगड़े की जगह होती है, जो डिस्प्यूट की जगह होती है, जिसपे दो कंट्री या दो व्यक्ति अधिकार जमाते हैं, वो नो मैन्स एरिया कहलाता है। तो दोनों आर्मियों के बीच में कुछ जगह थी, दैट इज नोन एज नो मैन एरियाज। तो नो मैन एरियाज के उस तरफ, जर्मन एरियाज की तरफ से कुछ सैनिकों ने व्हाइट फ्लैग लेते हुए हवा में उनको वेविंग किया। एंड हैप्पी क्रिसमस टॉमी, टॉमी है जो है वो ब्रिटिश आर्मी के लिए आया है, हैप्पी क्रिसमस ऐसा उन्होंने। देन व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज, गोट ओवर इज द फ्रेज, इट मींस द फीलिंग बेटर आफ्टर समथिंग। जैसे हमने इसको देखा और इस तरह के सरप्राइज को फील किया हमने कि ये क्या हो गया, हम तो वी आर द एनिमी, हम तो दुश्मन है, फिर ऐसा कैसे है। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से कुछ लोग
सेम टू यू करके चिल्लाए, फिर सेम टू यू ऐसा उन्होंने कहा कुछ सोल्जर्स ने। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा ठीक है दैट वुड बी दैट, जब वो हैप्पी क्रिसमस कह रहे हैं तो हम भी कहते हैं, देयर इज नो हार्म सेइंग दिस, इसमें कोई नुकसान तो नहीं है। सो उतर ने तो कैप्टन जो था जिम मैकफरसन, उसने इसको इग्नोर कर दिया कि ठीक है कह रहे हैं। वी ऑल डिड, हम सबने हैप्पी क्रिसमस बोला, बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग व्हाइट फ्लैग, बट थोड़े ही समय के बाद में अपोजिट आर्मी, जर्मन आर्मी का एक सोल्जर हमारे सामने व्हाइट फ्लैग अपने हाथ में लिए हुए, अपनी ग्रेट कोट यूनिफॉर्म जो होती है उसको पहनते हुए हमारे सामने आ गया, मोमेंट्स एरिया के पास में तक पहुंच गया। डोंट शूट, लेट्स, लेट्स होता है गुड बॉयज के लिए, लेट्स जो होता है वो गुड बॉयज के लिए होता है, और लेस जो होता है एल एस जो होता है वो गुड गर्ल के लिए आता है, गुड गर्ल के लिए। लेट्स, समवन शाउटेड, उनमें से एक चिल्लाया जोर से कि नो डोंट शूट, लेट्स, नो वन डिड, ऑक्सी ने भी शूट नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फेड्स, कुछ दो और जर्मन सैनिक वहां पहुंच गए। अब ऑन द का पापेट, पापेट मींस स्लो प्रोटेक्टिव वॉल अलोंग द एज ऑफ द बाउंड्री, तो बाउंड्री लाइन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव जो दीवार बनी होती है वहां तक आकर पहुंच गए, नोमेंस बाउंड्री तक पहुंच गए, लैंड की बाउंड्री तक पहुंच गए। अनदर कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, मैंने उनको कहा कि अपने हेड्स को डाउन रखिए, नीचे रखिए, सामने मत देखना। दैट वाज द रूल ऑफ द एनी आर्मीज टू रेस्पेक्ट अदर। इट इज अ ट्रिक बट इट वाजंट, लेकिन ये ट्रिक नहीं थी के लिए। देन ये सब कुछ उस लेटर में लिखा हुआ है जो उसने अपनी वाइफ को भेजा था, और जो कैप्टन ने अपनी वाइफ को भेजा था, और जो उत्तर को जो भी मिला है उसी को यहाँ उत्तर पढ़ करके सुना रहा है। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बोतल अबोव हिज हेड, और एक जर्मन जो सोल्जर था वो अपने सर के ऊपर से एक बोतल को वेविंग कर रहा था। इट्स क्रिसमस डे, टमी टमी का मैंने आपको पहले बताया था ब्रिटिश आर्मी के लिए आया है, और फ्रिज जो वर्ड है वो जर्मन आर्मी के लिए आया है। वी हैव स्नैप्स, स्नैप्स जो होती है खाने की जो चीजें जो होती हैं उनको कहा, वो है, उन्होंने कहा कि हमारे पास स्नैप्स है। वी हैव सॉसेज, हमारे पास सॉसेज हैं। वी मीट यू, हम आपसे मिलते हैं। यस, बाय दिस टाइम, उस समय तक देयर वर डजन्स ऑफ देम, वहां इस समय तक इतनी देर में ऐसे बात करते करते धीरे धीरे दर्जनों सैनिक वहां इकट्ठे होकर वॉकिंग टुवर्ड अस अक्रॉस नो मैंस लैंड, वो नो मैंस लैंड के अक्रॉस में हमारी तरफ मूव कर रहे थे। नोट राइफल बिटवीन देम, हमारे उनके बीच में राइफल नहीं थी उस दिन के लिए। विदाउट एनी इक्विपमेंट वेपन्स, बिना हथियार के थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, सबसे पहले जो वहां बाउंड्री पहुंचने वाला जो था वो लिटिल प्राइवेट मॉरिस था। कम ऑन बॉयज, उसने ऑर्डर किया कि सभी यहाँ आ जाओ। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और इतना कहते ही वो रुक नहीं पाए, मीन्स उनको कोई रोक नहीं पाया, सब लोग वहां इकट्ठे हो गए। आई वाज द ऑफिसर, ऑथर कहता है कि मैं वहां, ऑथर नहीं, लेटर में जो जिसने लेटर लिखा है जिम, जिम कहते हैं कि मैं वहां का ऑफिसर था ब्रिटिश आर्मी का। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, मुझे उनको रोक देना चाहिए था। देन आई सपोज, जैसा मैंने सोचता हूँ, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर टू मी, लेकिन मैंने उनको रोका ही नहीं। आई शुड, जैसा कि होना चाहिए था वैसे मैंने नहीं किया। Then I suppose all along their lines, lines के means the boundary lines and ours, हमारी और उनकी lines के पास में I could see men walking slowly toward one another। और कैप्टन कह रहा है यहाँ पर जिम कि हमारी और उनकी बाउंड्री लाइन के पास में मैं दोनों तरफ के सैनिकों को धीरे धीरे बाउंड्री के पास में आते हुए देख रहा था। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, बीच में मिल रहे थे वो बाउंड्री लाइन के ऊपर। एंड आई वाज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था। मैं भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा था, मैं भी उनसे मिलने के लिए जा रहा था। आई वाज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उस भीड़ का, उस क्राउड का पार्ट था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, और इस वार के मध्य में हम शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। देन
नेक्स्ट है यू कांट इमेजिन द रेस्ट। कौन है ऑथर? जिम, कैप्टन जिम जो है अपनी वाइफ को कहता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते उस दिन क्या हुआ। माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रीज ऑफिसर। जब मैंने फ्रीज मीन्स जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा तो मेरी फीलिंग्स, जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसा मुझे फील हुआ। हु अप्रोच्ड मी, वो मुझ तक पहुंचा। हैंड आउट स्टेज, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया सेकिंग के लिए। हैंस वोल्फ, ही सेड, उसने कहा कि आई एम हैंस वोल्फ, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। मेरे हाथ को वार्मली ग्रिप किया और होल्ड किया, मीन्स वेलकम किया। आई एम फ्रॉम डुसेल फोर्ट डोफ। डुसेल डोफ, वो कहता है कि मैं डुसेल डोफ से हूँ। आई प्ले द शेलो, शेलो का मतलब होता है एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द ऑर्केस्ट्रा। जो जर्मन आर्मी का जो कैप्टन था दैट वाज हेंस वोल्फ, फ्रॉम बिफोर coming into the army he was used to play musical instrument that is the cello, the violin की तरह होता है। हैप्पी क्रिसमस उसने कहा। कैप्टन जिम मैकफरसन, उसने कहा। आई रिप्लाइड, मैंने उसके वेलकम के लिए मैंने कहा आई एम कैप्टन जिम मैकफरसन एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो जो ब्रिटिश आर्मी का कैप्टन जिम मैकफरसन था वो कहता है, उसे हैप्पी क्रिसमस से बोलता है और वो अपने पास्ट को बताता है कि मैं आर्मी में आने से पहले एक स्कूल टीचर था इन डोरसेट। डोरसेट इज द विलेज और ए टाउन और ए डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड, इन वेस्ट पार्ट ऑफ द इंग्लैंड। ओह डोरसेट, ही स्माइल। जैसे ही उसने डोरसेट का नाम सुना, जर्मन आर्मी का कैप्टन जो हैंस वोल्फ था वो सरप्राइज हुआ, स्माइल किया। आई नो दिस प्लेस, उसने कहा कि हाँ मैं उस स्थान को अच्छी तरह से जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एक बार तो ऐसा लगता है कि ये जो जर्मन आर्मी का जो ये कैप्टन है वो शायद वहाँ विजिट करके रहा हुआ हो गया, वहाँ विजिट की होगी, बट ऐसा नहीं है। वी सेड माई रम राशन, राशन मीन्स राशन सामग्री। ऑथर कहता है जिम मैकफेसन कहता है कि हमने हमारी रम, राशन एंड हिज एक्सीलेंट सोसेज को हमने शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, हमने वहां बैठ के बातचीत की। कोनी, कोनी मीन्स अपनी वाइफ को कहता है कि हम दो आर्मी के कैप्टन जो कि दुश्मन थे, हम दोनों ने एक साथ बैठ करके अपनी चीजों को शेयर किया, हमने बातचीत की। हाउ वी टॉक्ड, और जिस तरह से हमने बातचीत की ऐसे लगता है कि हम दुश्मन है ही नहीं। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बहुत ही अच्छी तरह से इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट। लेकिन बातों बातों से ऐसा पता चला कि वो कभी डोरसेट, जहाँ से ब्रिटिश आर्मी का सोल्जर बिलोंग करता था, वहाँ कभी गया ही नहीं। जो कुछ भी वो डोरसेट के बारे में जानता था वो सब उसने बुक से पढ़ करके जाना था। नेवर इवन इवन बीन टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड कभी गया ही नहीं। He had learned all he knew to England from school and from reading books in English. जो कुछ भी उसने डोरसेट के बारे में जाना वो सिर्फ स्कूल या बुक्स के माध्यम से वो जाना। His favorite writer was Thomas Hardy, ब्रिटिश का थॉमस हार्डी काफी फेमस राइटर था। वो उसका फेवरेट राइटर था। His favorite book far from the maid's crowd. So out there in no man's land we talked of a Bathsheba, Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset। वहाँ हमने बैठ करके इन स्थानों, इन व्यक्तियों के बारे में, इन राइटर्स के बारे में, इन जिलों के बारे में हमने बातचीत की। He had a wife and son, उसने अपनी पूरी फैमिली के बारे में बताया कि उसकी एक वाइफ है और एक बच्चा भी है। Born just 6 months ago, जिसका जन्म 6 महीने पहले ही हुआ था। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere। और जब मैं मेरी तरफ देखता हूँ तो मुझे मेरे चारों तरफ सिर्फ खाकी ही नजर आती है। ऐसा लगता है कि शायद जिम मैकफरसन के बच्चे नहीं थे। ऑल ओवर नो मीन्स लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग्स। और उस नो मीन्स लैंड के ऊपर दोनों आर्मी के सैनिक हंस रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों जो आर्मी वहां इकट्ठे थे उनके बीच में कभी कोई दुश्मनी थी ही नहीं।
they were the one. Hans Wolof and I means the Jim McPherson, said what was left for your wonderful Christmas cake. जो कुछ भी चीजें उनके पास में थी, क्रिसमस केक या अदर चीजें वो उन्होंने शेयर की। कोनी कोनी को बताता है वो, he thought that marzipan is a name of sweet, a sweet covering on the cake made with sugar, egg and almond से बनी हुई होती है। He thought the marzipan was the best had ever tasted. He had ever tasted. और ऑथर कहता है कि जब मैंने उसको मार्जिपन स्वीट दी तो उसने उसको टेस्ट किया और उसको ऐसा लगा कि उसने जीवन में कभी पहली बार खाई नहीं है, पहली बार खा रहा हो। आई एग्रीड, मैं सहमत हुआ। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम सभी चीजों के बारे में सहमत हुए। ही वॉज माई एनिमी, वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। ऑथर जिम मैकफरसन कहता है कि ऐसी क्रिसमस पार्टी मैंने कभी नहीं देखी। हम दो दुश्मन आर्मी के सैनिक होते हुए भी हमने एक ऐसा क्रिसमस सेलिब्रेशन किया, ऐसा क्रिसमस तो मैंने अपने धर्म में और कभी जीवन में कभी नहीं किया, ऐसा ऑथर बताता है। अभी तक वो लेटर है जो ऑथर को उस दौर में मिला है, उसी की रीडिंग चलती है। वो उसमें ऐसा लिखा है, वो अपनी वाइफ को बता रहा है। Then someone I don't know who bought out a football, पता नहीं कौन उसी ड्यूरेशन में फुटबॉल वहां लेके आ गया। Great coats were damped in piles to make goal post. ग्रे कोट्स जो उन्होंने पहन रखे थे वो ग्राउंड पर गोल पोस्ट बनाने के लिए रख दिए गए। बिकॉज वहाँ स्पोर्ट्स का ग्राउंड तो था नहीं, तो उन्होंने हाथों हाथ रेडी किया, तो गोल पोस्ट के लिए कोट सिंबल के रूप में यूज किया है। द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टमी अगेंस्ट फ्रिज। टमी मींस ब्रिटिश आर्मी। अगली जो घटना वहां थी वो थी कि टमी और फ्रिज के बीच में युद्ध न होकर के एक फुटबॉल का मैच होने लगा। आउट इन द मिडिल ऑफ नो मेंस लैंड। नो मेंस लैंड जो डिस्प्यूट लैंड थी उसके ऊपर दोनों आर्मी के सोल्जर्स ने फुटबॉल का मैच खेला। हैंस वुलफ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हम दोनों ने देखा और चीयर हुई, खुशी हुई। क्लेप्ड आवर हैंड्स, हमने हमारे हाथ क्लैपिंग की। स्टैम्पिंग आवर फीट, हमने मैच के दौरान हमारे फुट को स्टैम्पिंग करते रखा। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, और इसलिए ताकि वो अपने पैर को स्टैम्पिंग करके उस ठंड को भी भगा सके और इसके साथ साथ में मैच का भी आनंद ले सके। देयर वाज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस आवर ब्रिज मिंगल इन द एयर बिटवीन अस। और ऐसा भी समय आया जिससे जब मुझे लगा कि हम दोनों दुश्मन पार्टीज की सांसें जो ब्रिज जो है, सांस जो है वो बिल्कुल मिंगल हो गई, मतलब मिल गई हो। ऐसा लग रहा है कि हम एक ही घर के मेंबर्स हैं। he saw it too and smile, उसने भी ऐसा देखा। उसका मीन्स हेंस वो लोग ब्रिटिश आर्मी के जो कैप्टन था उसने भी ये नोटिस किया कि हम दोनों एनिमीज के बीच में आज इस फेस्टिवल के दिन दोनों बिल्कुल मिलजुल गए थे, मिंगल हो गए थे। जी मैकफरसन ही सेड आफ्टर ए व्हाइल, काफी लंबे समय उसने कहा, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजोल्व दिस वॉर। उसने कहा कि यह मैच ही है जिसके माध्यम से हम इस युद्ध को रिजोल्व कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। ए फुटबॉल मैच, नो मैन डाई इन फुटबॉल मैच, कि फुटबॉल मैच से न तो कोई मरता है, नो चिल्ड्रंस आर ऑफन, न कोई बच्चे अनाथ हो पाते हैं, नो वाइव्स बिकम विडो, और इस मैच से न कोई वाइफ विडो होती है। आई प्रेफर क्रिकेट। आई का मतलब यहाँ है ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन जिम मैकफरसन कहता है कि मैं क्रिकेट को पसंद करता हूँ। अब यहाँ देखिए आई और डी के बीच में अपोस्ट्रोफ लगा हुआ है, इसके दो मीनिंग है। देखिए इसका कभी कभी अर्थ वुड होता है और कभी कभी इसका मीनिंग हेड भी होता है। अब हेड कब होता है, वुड कब होता है, देखें जब इस डी के साथ में फर्स्ट फॉर्म आए, जैसा कि यहाँ पर प्रेफर जो फर्स्ट फॉर्म है, जब ऐसा होता है तो ये वुड कहलाता है। क्या कहलाता है? वुड। और जब इस परफेक्ट का परफेक्ट आ जाए तो ये डी हेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेड। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। आई का मतलब जिम मैकफरसन कहता है कि मैं क्रिकेट को पसंद करता हूँ। देन वी टॉमीज, टॉमी मींस ब्रिटिश आर्मी, कुड बी श्योर ऑफ विनिंग। यदि यहाँ क्रिकेट का मैच होता तो हम निश्चित तौर पर जीत जाते, प्रोबेबली। वी लाफ्ड एट दैट, इस बात पर हम सब हंसे। टुगेदर, साथ में हंसे। वी वॉच द गेम, हमने गेम को देखा।
सेड टू से कहने की बात ये सॉरी ये है कोनी फिट्स वो बस उस दिन फुटबॉल में जो था फिर ब्रिटिश जर्मन आर्मी जीत गई थी 2 goals to 1 वो 2 से जीत गई थी बट एज हेंस वोलोप जनरसली सेड लेकिन जब जीत हुई तो बहुत ही उदारतापूर्वक जनरसली हेंस वोलोप ने कहा आर गोल वाज वाइडर देन देयर्स और उसने कहा कि हमारा जो गोल है जो उद्देश्य है उनसे ज्यादा अच्छा है उनसे का मतलब है उनके हेड से हम इस हार जीत को अपने हार्ट पे नहीं लेते हैं दिस इज द फ्रेंडली मैच सो इट वाजंट क्वाइट फेयर द टाइम केम समय ऐसा आया मैच के दौरान काफी लंबे समय तक पार्टी चली ऑल टू सून बहुत ही जल्दी ही सभी लोग व्हेन गेम वाज फिनिश अब गेम फिनिश हो गया द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट सब चीजें अब लगभग फिनिश हो गई थी वी न्यू इट वाज ऑल ओवर अब हमें पता था कि गेम भी ओवर हो गया पार्टी भी ओवर हो चुकी है आई विश हेंस एज वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून और मैंने हेंस वो लोग जर्मन आर्मी के सोल्जर को अपनी फैमिली से शीघ्र मिलने की होप की एंड दैट द फाइटिंग वुड इन एंड वी कुड ऑल गो होम और ये भी हमने आशा की कि फाइटिंग बहुत जल्दी ही फिनिश हो जाएगी और हम सब अपने घर चले जाएंगे आई थिंक दैट इज वोट एवरी सोल्जर वांट्स क्योंकि सभी सैनिक यही बात चाहते हैं कि युद्ध जल्दी से जल्दी फिनिश हो और हम जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचे ऑन द बोथ साइड्स henceforth दुश्मन से कितने ही हो तो दोनों साइड के सैनिक जो है वो घर जाना चाहते हैं henceforth said टेक केयर जी मैकफरसन आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट मैं इस मोमेंट को कभी भूल नहीं सकता इस मोमेंट को इस क्रिसमस फेस्टिवल के सेलिब्रेशन को कभी भूल नहीं सकता नोर यू ने आप भूल पाओगे he saluted and walked away from me slowly और वहां उसने मुझसे सलूट करते हुए वहां से धीरे धीरे चला गया अनविलिंगली वो जाना नहीं चाह रहा था लेकिन उसे जाना पड़ा आई फेल्ट ऐसा मैंने महसूस किया कि उसे जाने का मन नहीं कर रहा था he turned to he turned to wave just once वो एक बार अपना हैंड वेव करने के लिए टर्न हुआ then became one of the hundreds of grey coated men drifting back toward their trenches और फिर उस भीड़ का हिस्सा बन गया then that night back in our dug dugouts means डग का मतलब होता है डिग मतलब डिग का मतलब खोद करके खोद जमीन को खोद करके जो बनाए हुए घर जो होते हैं सैनिकों को रहने के लिए उनको डग आउट्स कहते हैं क्या कहते हैं डग आउट्स तोतर कहता है दैट नाइट इन आर डग आउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग कोरल जब हम वापस आ गए जब वो अपने घर वापस चले गए हम अपने टेंट में बैठे बैठे उनके गाने गाने की आवाजों को सुन रहे थे सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली बहुत सुंदरतापूर्वक गाने गा रहे थे इट वाज सेटिल नेट नेट का मतलब साइलेंट नाइट ये बहुत ही अच्छी नाइट थी बहुत ही शांत नाइट थी आवर बॉयज गिव देम ए राउजिंग कोरस while Sapphire's voices we sang exchange choral for a while and then we all fell silent और जब जर्मन आर्मी के सैनिक सॉन्ग गा रहे थे तो ब्रिटिश आर्मी के सैनिकों ने भी उनके साथ मिल करके गाने गाए और अपने फीलिंग को एक्सचेंज किया और फिर वो साइलेंट हो गए वी हैड हैड आर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल्स और इस तरह से हमने ऑथर कहता है राइटर या लेटर राइटर जी मैकफरसन कहते हैं कि हमने बहुत शांतिपूर्वक हमारा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया एट टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज लिव और ये एक ऐसा समय जिसको मैं जहां तक जब तक जीवित रहूंगा इसको एक खुशी के खजाने के रूप में सजा के रखूंगा द रेस्ट को नहीं बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर अगले साल क्रिसमस तक दिस वॉर विल बी नथिंग अगले साल के क्रिसमस तक ये वो वॉर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी लेकिन वो तो इसकी मेमोरी जो होगी वो टेरिबल होगी आई न्यू I know from all that happened today how much both armies long for peace. उत्तर कहता है कि जैसा कि आज जो घटना घटी है उसके माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि दोनों आर्मी एक दूसरे को के साथ लड़ती है मारती है लेकिन दोनों ही शांति चाहती है दोनों ही युद्ध नहीं चाहती है वी शैल बी टुगेदर अगेन सून हम फिर सभी एकजुट होंगे आर्मी चोरोबिट में इसके बारे में निश्चित तौर पर कह सकता हूँ यो लविंग जिम ये कंप्लीट लेटर है जो राइटर को उस टेबल की ड्रॉवर में मिला जो जी मैकफरसन ने अपनी वाइफ को लिखा था इसके बारे में
अब हम इसमें आए हुए क्वेश्चनों का स्टडी करेंगे, क्वेश्चन आंसरों को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर लुक इन द शॉप? जब ऑथर मार्केट गया तो उसने उस दुकान में क्या देखा? द ऑथर लुक्ड ए रोल टॉप डेस्क एंड एन ओक। दो चीजें वहां देखी थी उसने, एक रोल टॉप डेस्क देखी थी, एक ओक देखा था। नेक्स्ट थिंग, हाउ वाज द रोल टॉप डेस्क? वो कैसी थी? The roll top desk was in bad condition. It was several pieces, काफी भागों में टूटी हुई थी। One leg was clumsily mended. Scratch mark were all down one side. दूसरी तरफ scratch के मार्क भी थे। Next question. What did the author purchase from the shop? Author ने उस दुकान से क्या खरीदा? सिर्फ दो चीजें थी, रोल टॉप डेस्क भी थी वहां पर, ओक भी था। तो ऑथर ने क्या परचेज किया वहां से? द ऑथर परचेज ए रोल टॉप डेस्क फ्रॉम द शॉप। ये परचेज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर डू विद दैट ड्रॉवर? ऑथर ने उस ड्रॉवर को परचेज करने के बाद क्या किया? उस टेबल के साथ क्या किया ऑथर ने? द ऑथर एनी हाउ ओपन द ड्रॉवर। ऑथर ने उस ड्रॉवर को ओपन किया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द ड्रॉवर? ऑथर उस ड्रॉवर में क्या मिला? ऑथर फाउंड tin box a tin box wrapped with the cello tape in a secret drawer। ऑथर को उस टेबल के ड्रॉवर की सीक्रेट ड्रॉवर में एक टिन बॉक्स मिला जो कि एक सेलो टेप से रैपिंग किया हुआ था, जिसके अंदर ये लेटर था। देन नेक्स्ट, व्हाट वाज द डेट ऑफ रिसीविंग एंड डिलीवरिंग ऑन दैट लेटर? उस डेट पर, लेटर पर क्या डेट लिखी हुई थी रिसीविंग की और डिलीवरिंग की? The letter was delivered on 26 December 2014 and received on January 25th, 1915। Next question, who wrote the letter to whom? ये लेटर किसने किसको लिखा? Mr. Jim McPherson wrote the letter to Mrs. Jim McPherson। कौन इसको कहा गया है? And Jim McPherson was the captain in the British Army। Next question, what was the letter about? उस लेटर में क्या था? The letter was about celebration of Christmas of two enemy armies। दो enemy armies के बीच में क्रिसमस के सेलिब्रेशन के ऊपर लेटर लिखा हुआ था। Who was the captain of British Army? Mr. G. Macpherson was the captain of British Army। And next question, we can say who was the captain of the German Army? The captain of German Army was Hans Wolf। Next, who was the captain of German Army? That was the question। What did they play? उन्होंने कौन सा गेम वहां प्ले किया? They played football match। Had Hans Wolf ever been to Dorset? Why did he say he knew it? No। इसमें ये पूछा गया है, क्या हैंस वोल्फ जर्मन आर्मी का कैप्टन कभी ब्रिटेन गया था? कभी नहीं गया था। तो वो इतनी चीजें डोरसेट के बारे में इतनी कैसे जानता था? वो सब चीजें वो उसने किताब में पढ़ के जाना था। इसमें लिखा, नो ही हैड नॉट बीन इन इंग्लैंड। वो कभी इंग्लैंड गया ही नहीं। वॉट एवर ही न्यू अबाउट इंग्लैंड ही रेड देम फ्रॉम द बुक्स। ये सब चीजें बुक से पढ़ी थी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। like it, share it and subscribe it। Thanks a lot।